A very good morning to all of you, my dear parents and my dear students. I hope all of you are fine and taking best care of yourselves from this coronavirus. So I'm here, children, to tell you about the half yearly examination, that how your half yearly examination will be conducted. So classes 1 to 9th are having half yearly examination, but class 10th is having pre-board examination. So first of all, let me talk about class 10th. Children, you all are having your examination through Google form. Okay, your teachers will send you the link just before the 5 minutes of your timing. Like your timing is 3 o'clock to 4 o'clock, so your teachers will send you the link of Google form at 2:55. You don't have to do anything, you just have to open the question paper, and first of all you have to fill the necessary details which is needed in your question paper, like your name, your father's name, email ID, class section and all, and then you have to start solving your question paper. And at last an option will come submit, so you have to submit your question paper within the timing only. So this was about the class 10. Now let's talk about the class 1 to 9th students. Class 1 to 9 students are having half yearly examination, and they will have the half yearly examination through online only. No offline exam will be conducted for any of the classes. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दी ओरल एग्जाम फर्स्ट. हम स्टेप बाय स्टेप करके बात करते हैं. पहले ओरल एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, फिर हम रिटन एग्जामिनेशन की बात करेंगे. ओरल एग्जामिनेशन एंड रिटन एग्जामिनेशन दोनों ही गूगल मीट के थ्रू होगा, एंड जो आपकी टाइमिंग है एग्जामिनेशन की वो दोनों में ही सेम होगी, ओरल में भी एंड रिटन में भी. ओके, सो आपकी जो भी टाइमिंग है एग्जामिनेशन की, उससे जस्ट 5 मिनट पहले आपके टीचर्स आपको गूगल मीट का लिंक भेजेंगे. आपको कुछ नहीं करना, बस वो लिंक पे क्लिक करके आपको मीटिंग को ज्वाइन कर लेना है. एंड फ्यू थिंग्स आर देयर विच यू हैव टू रिमेंबर. कुछ चीजें हैं जिसे आपको याद रखना है. फर्स्ट इज दिस, दैट विच यू ऑल हैव टू वेयर दी स्कूल ड्रेस. सबसे पहले आपको स्कूल ड्रेस पहनना है, एंड यू शुड लुक स्मार्ट. ओके, you don't have to sit like this only wearing the school dress and anyhow you are sitting. No, you should look neat and tidy, and in a smart way you have to look like that. Second thing, you have to open your camera. Okay, the teachers need not to tell you again and again that open the camera. If you will do that, teachers will remove you from the Google Meet and they will not allow you to give the exams. Okay, थर्ड थिंग, दैट यू हैव टू स्विच ऑफ योर माइक्स. आपको आपके माइक्स ऑफ रखने हैं. देयर इज एन ऑप्शन ऑफ चैट बॉक्स. यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स. वंस यू एंटर इन गूगल मीट, काइंडली स्विच ऑफ योर माइक्स. नो वन विल से गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर इन द एग्जाम्स. इट इज नॉट अलाउड. ओके, वंस you enter in your Google Meet, you switch on your camera and switch off your mic and write it in the chat box whatever you want to write. If you want to ask any question in the written examination also, if you want to ask any question, if you have any query, write it in the chat box. Teachers will see your question and they will reply you. Okay, so आपने एक बार Google Meet ज्वाइन कर लिया. उसके बाद स्मॉलर क्लासेस में रीडिंग, रेसिटेशन, डिक्टेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, पीटी, एंड इन द बिगर क्लासेस SUPW, ये सारे के सारे ओरल एग्जामिनेशन में आते हैं. तो 5 मिनट पहले टीचर ने आपको लिंक भेज दिया, आपको ज्वाइन हो जाना है. उसके बाद टीचर्स विल कॉल योर नेम वन बाय वन अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर्स. ओके, टीचर्स विल प्रोवाइड यू द रोल नंबर्स. सो अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर दे विल कॉल योर नेम. जैसे ही आपका नाम आएगा, आपको बस अपना कैमरा ऑन रखना है, माइक ऑन रखना है, और उसके बाद आपका नाम लिया जाएगा. जैसे रीडिंग रेसिटेशन के लिए आपका नाम लिया जाएगा, तो टीचर्स जो आपको रीड करने के लिए बोलेंगे वो रीड करना है, और जो पोएम सुनाने के लिए बोलेंगे वो सुनाना है. सेम इन द डिक्टेशन एग्जाम, टीचर्स विल डिक्टेट द वर्ड्स, यू ऑल हैव टू राइट द वर्ड्स. एंड इन आर्ट एंड क्राफ्ट में भी जो आपने बनाया होगा दे विल सी, एंड सेम इन द SUPW. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिटन एग्जामिनेशन चिल्ड्रन. रिटन एग्जामिनेशन में बेटा आपकी टाइमिंग से हाफ एन आवर पहले, ठीक है, सपोज आपकी टाइमिंग है, जैसे क्लास 3 की टाइमिंग है 8 o'clock से 9 o'clock, ठीक है. सो आपकी टाइमिंग से जस्ट हाफ एन आवर पहले, मींस एट 7:30 टीचर्स विल सेंड यू द क्वेश्चन पेपर इन द गूगल क्लासरूम. ठीक है, जिस भी टीचर का पेपर होगा वो आपको अपना पेपर गूगल क्लासरूम में सेंड करेगा. आपको क्या करना है, आपको आधे घंटे का टाइम मिला है, उसमें आप लोगों को क्वेश्चन पेपर रफ कॉपी में या जहां पे भी आप उतारना चाहते हैं वहां पे उतार लेना है. जिससे कि ये होगा कि आप जब गूगल मीट पे आओगे, टीचर्स विल ऑब्जर्व यू, तो आपको क्वेश्चन पेपर इधर उधर से नहीं देखना पड़ेगा. ओके, सो बिगर चिल्ड्रन आर बिग इनफ टू कॉपी द क्वेश्चन, सो दे कैन कॉपी द क्वेश्चन पेपर बाय देयर ओन, बट फॉर द स्मॉलर चिल्ड्रन क्लास 3 and 1 2 they are not able to copy the question paper. So parents, we need your cooperation here. Please copy the question paper of your ward if you think they will not be able to copy the question paper at half an hour.
ओके उसके बाद आपकी टाइमिंग से जस्ट 5 मिनट पहले, लाइक 8 o'clock to 9 o'clock टाइमिंग थी क्लास 3 की, एट 7:55 टीचर विल सेंड यू द लिंक ऑफ गूगल मीट। आपको उस लिंक पे क्लिक करके तुरंत मीटिंग ज्वाइन करनी है। ऑल द टीचर्स विल ऑब्जर्व यू, कैमरे ऑन रहेंगे, माइक्स ऑफ रहेंगे, एंड टीचर के सामने ही आपको एग्जाम देना है। Okay, whatever queries are there, you can just write it in the chat box. Teachers will reply you. Okay, after finishing your exam, what you all have to do is just you have to click the photographs of your answer sheet and you have to make a PDF and just submit it in the Google Classroom. वहीं पे जहाँ पे टीचर ने अपने टॉपिक के, अपने सब्जेक्ट के अंडर में क्वेश्चन पेपर डाला है, वहीं पे आपको अपना PDF को हैंड ओवर करना होता है। ठीक है, सपोज आपका टाइमिंग से पहले आपका क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है, जैसे 9 o'clock आपका टाइमिंग है, ओके उससे पहले आपका, जैसे क्लास 3 का टाइमिंग था फॉर एग्जांपल 8 o'clock to 9 o'clock, अगर 9 o'clock से पहले, मतलब आपकी टाइमिंग से पहले आपका क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है, तो आप माइक ऑन करके टीचर से ये नहीं बोलोगे कि मैम माय पेपर इज फिनिश, कैन आई गो एंड सबमिट इट। नो, यू हैव टू वेट टिल द टाइम गेट्स ओवर। उसके बाद एक्स्ट्रा 10 minutes यू विल गेट। ठीक है, जैसे 8 o'clock से 9 o'clock का टाइमिंग था क्लास 3 का, तो आपकी जो भी टाइमिंग होगी 10 minutes एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। आप उसके बाद आप मीटिंग छोड़ सकते हैं और जाके PDF सबमिट कर सकते हैं। उससे पहले आपका पेपर अगर फिनिश हो जाता है, ठीक है, तो आप रिवाइज करिए, आपने स्पेलिंग सही लिखी है कि नहीं, आंसर सही लिखा है कि नहीं, एंड देन व्हेन योर टाइम विल गेट ओवर, देन यू हैव टू सबमिट योर क्वेश्चन पेपर इन द गूगल क्लासरूम। ओके, now coming on the answer sheet children, like last year, this year also you will get the answer sheet from the school only. ओके, एंड उन्हीं आंसर शीट्स में आपको अपना पेपर फिनिश करना है, अपना पेपर करना है, और किसी भी कॉपी में अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो 16, 17 एंड 18 को यू विल कम टू स्कूल टू कलेक्ट द आंसर शीट। टाइमिंग्स का नोटिस आपको मिल ही गया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, और आपको मैसेज भी मिल गया है कि 16, 17, 18 को आपको आना है आंसर शीट्स कलेक्ट करने के लिए। तो 16, 17, 18 आप लोग आएंगे अपनी आंसर शीट्स कलेक्ट करने के लिए। टीचर्स विल मेक द बंडल्स अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स। जितने भी सब्जेक्ट्स आपकी क्लास में होते हैं, जैसे क्लास 1 and 2 में 9 है, 3 and 4 में 10 है, 5 में 11 है, 6 to 8 में 13 है सब्जेक्ट्स, है 9th में 11 सब्जेक्ट्स है। सो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स टीचर्स विल मेक द बंडल ऑफ आंसर शीट्स एंड दे विल प्रोवाइड यू। उसी में ही आपको अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। नेक्स्ट थिंग बेटा, teachers in the smaller classes, teachers are writing this subject also, they are writing the date also, जिस डेट पे आपका एग्जाम है वो भी लिख रहे हैं, and they are doing the signature also. You don't have to do anything in the answer sheet, आपको सिर्फ अपना नाम भरना है, रोल नंबर लिखना है in your answer sheets. Okay? एंड एक चीज आप याद रखेंगे, लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था कि जिन बच्चों की आंसर शीट अगर खत्म हो गई है तो उन्होंने जो स्कूल से कॉपी मिली थी उसी को ही पीछे लगा लिया था। ये नहीं करना है। ठीक है, अगर आपकी आंसर शीट फिल हो जाती है जो आपको स्कूल से मिली है, उसमें आपका काम नहीं चलता है, ठीक है, तो आपको एडिशनल शीट्स लगानी है अपने पास से, और उसमें सिर्फ पंच पेपर यूज होगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, यू आर अलाउड ओनली टू यूज द पंच पेपर एज एडिशनल शीट इन योर कॉपीज। ठीक है, पहले आप फर्स्ट कॉपी हर सब्जेक्ट में वही होगी जो आपको स्कूल से मिली है, इसीलिए उसमें सब्जेक्ट्स लिख के दे रहे हैं टीचर्स। फर्स्ट कॉपी आप वो लगाओगे और उसके बाद एडिशनल शीट में आप पंच पेपर लगा सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपके बाद उसके बाद पेपर आपका फिनिश हो जाए, आप उसको स्टेपलर से स्टेपल कर दीजिए एंड आपको स्कूल में आके उसको सबमिट करना है चेकिंग के लिए, जैसे कि लास्ट ईयर आपने किया था। ठीक है, आपको सबमिट कब करना है, सबमिशन की डेट आपके डेट शीट में मेंशन है। फर्स्ट सबमिशन है 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो 21 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक जितने भी पेपर हो जाएंगे वो आपको 1 अक्टूबर को आके स्कूल में सबमिट करना है चेकिंग के लिए। ठीक है, टाइमिंग्स क्या है उसका मैसेज आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सबमिशन है 8 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक के जितने भी पेपर हो जाएंगे वो आपको 8 अक्टूबर को आके सबमिट करने हैं स्कूल में चेकिंग के लिए। एंड लास्ट सबमिशन है 13 अक्टूबर को। ठीक है, तो 8 से लेके लास्ट तक के जितने भी पेपर होंगे वो 13 को आके आपको सबमिट करने हैं। ओके, एंड अगर आप आउट ऑफ स्टेशन है, कहीं बाहर है, आप अपनी कॉपीज नहीं सबमिट कर पाए शुरू से लेके आखिरी तक, तो 13th इज द लास्ट डेट। ओके, 13th इज द लास्ट डेट। लास्ट डेट तक आके आपको आपकी कॉपीज को स्कूल में सबमिट करना है चेकिंग के लिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी स्टूडेंट्स की आंसर शीट में आपको लिखना कैसे है। ओके, लेट्स सी। See children, this is the answer sheet which you will get from the school.
smaller classes में teachers will do the signature and write the subject also. I wrote the class and section also. In some smaller classes teachers will write the class and section, otherwise you all have to write it. Fill all the details here. What you all have to fill, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है पूरा, ठीक है, क्लास सेक्शन लिखना होगा, अगर नहीं होगा तो सब्जेक्ट एंड साइन तो मैम कर देंगी, रोल नंबर यू ऑल हैव टू राइट हियर एंड डेट यू ऑल हैव टू राइट हियर, इतना आपको भरना होगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो टीचर्स के लिए है, वो करना है। अब आप ये देखिए इसमें लिखना कैसे है। बहुत से टीचर्स ने पेपर सेक्शन वाइज बनाए हैं, तो अगर सेक्शन वाइज अगर आपका पेपर होगा तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है सेक्शन ए, ठीक है। मैंने पेंसिल से लिखा है बिकॉज आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल टू यू कि आपको लिखना कैसे है। क्लास 3 तक के बच्चे पेंसिल यूज़ करते हैं तो दे विल राइट विद द पेंसिल। क्लास 4 ऑनवर्ड्स यू ऑल आर यूजिंग पेन, सो ब्लैक पेन फॉर द राइटिंग द क्वेश्चन एंड ब्लू पेन फॉर राइटिंग द आंसर्स, ठीक है। ये सब तो आपको पता ही है कैसे करना है, ब्लैक पेन से क्वेश्चन करना है और ब्लू पेन से आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन पेपर में बेटा आप लोगों को क्वेश्चन उतारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस मैथ्स में आपको उतारना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में सम्स उतारे बिना आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू कॉपी द क्वेश्चन इन मैथ्स, अदरवाइज यू जस्ट हैव टू राइट द हेडिंग्स। ऐसे लिखना है सी। सबसे पहले मैं लिख लिया सेक्शन ए। अगर आपका पेपर सेक्शन वाइज होगा तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं। तो सेक्शन ए, देन फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए आपका फिल इन द ब्लैंक से, ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं उनको ऐसे लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स हेडिंग डाली, हेडिंग डालना कंपलसरी है, विदाउट उसके पता नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन क्या है। और सीरियल वाइज कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन हैं वो उनको सीरियल वाइज करेंगे, एक के नीचे एक। ये नहीं कि पहले क्वेश्चन 1 किया फिर क्वेश्चन 10 किया, नहीं, कोशिश करेंगे कि सीरियल वाइज करेंगे सब, ठीक है। देन यू ऑल हैव टू राइट द मार्क्स कि वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, एंड राइट द करेक्ट मार्क्स, ठीक है। जो भी उसका मार्क्स होगा राइट द करेक्ट मार्क्स। अब उसके अंदर का आपको कुछ भी उतारने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ उसमें 8 पार्ट्स हैं तो एक के नीचे एक नहीं लिखना है आप लोगों को। 1 2 3 4 पार्ट्स यू विल राइट हियर एंड देन यू ड्रॉ द मार्जिन लाइक दिस एंड 5 6 7 8 यू विल राइट दिस साइड, ठीक है। इससे क्या होगा, पेपर भी वेस्ट नहीं होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल शीट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी राइटिंग छोटी है तो वो इसी शीट में ख़त्म हो जाएगा, और अगर थोड़ी सी बड़ी है तो शायद 1 2 पंच पेपर आपको अपने पास से लगाने पड़े एडिशनल शीट के लिए, अदरवाइज़ आपका पेपर इसी में हो जाएगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो टू सेव द पेपर, सो वी विल राइट दी आंसर्स लाइक दिस इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, ठीक है। देन यू ऑल हैव टू ड्रॉ द लाइन, एक क्वेश्चन खत्म हो जाने के बाद। देन सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। अगेन अगर उसमें 8 पार्ट्स हैं या अगर 10 पार्ट्स होंगे तो 1 2 3 4 5 इधर लिखेंगे, 5 6 7 8 9 इधर 9 10 इधर लिखेंगे, 6 7 8 9 10 इधर लिखेंगे। अगेन ऐसी मार्जिन खींच लेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे, ओके। देन नीचे आते हैं आंसर। अब उसके बाद जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आंसर इन 1 वर्ड या आंसर इन 1 लाइन या गेस हु एम आई, नेम द फॉलोइंग, इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तब उनको आपको ऐसे बगल बगल में नहीं लिखना है, आपको एक के नीचे एक उसको लिखना है, ठीक है, नीटली करेक्टली। और एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद ड्रॉ द लाइन एंड देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, बिकॉज 3rd तक के बच्चों के पास पेंसिल रबर है, दे कैन इरेज एंड राइट, बट class 4 onwards you all are using pen. Don't use so much of whiteness, don't do so much of cutting, उस सब के मार्क्स कटते हैं। Do your paper in a neat and clean handwriting. Okay children, अब हम देख लेते हैं कि मैथ्स पेपर में आपको कैसे करना है, ठीक है। ये आपका मैथ्स पेपर है, मैथ शीट है। अगेन द टीचर्स विल डू द सिग्नेचर एंड राइट द सब्जेक्ट्स, क्लास एंड सेक्शन आपको करना होगा, आपका फुल नेम यहाँ पे लिखना होगा, रोल नंबर एंड डेट डालना होगा जिस टाइम का है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपका पेपर सेक्शन वाइज बना है तो यू हैव टू राइट द सेक्शन हियर, सेक्शन ए सेक्शन बी, तब उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर लिखने हैं। नहीं बना होगा तो नहीं लिखना है, डायरेक्टली लिखना है। सबसे पहले आप इधर देख लो, आपको मैथ्स के पेपर में ऐसे रफ वर्क का कॉलम बनाना है, ठीक है। ऐसे रफ वर्क का कॉलम बनाना है सारे पेजेस में। ये आपका फर्स्ट पेज है, ओके। देन इन दी सेकेंड पेज हियर ऑल्सो रफ कॉलम, थर्ड पेज हियर ऑल्सो रफ कॉलम एंड इन द लास्ट पेज ऑल्सो हियर रफ कॉलम। ये रफ वर्क जो आपको करने की ज़रूरत पड़ती है मैथ्स में, वो सारा रफ वर्क इस ही कॉलम में होगा, ठीक है। नो एनी अदर प्लेस यू विल यूज़ टू डू द रफ वर्क, ठीक। कोई भी अदर पेजेस आपको यूज़ नहीं करने हैं, और ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पेज में आप काम करो और पीछे वाले लास्ट पेज में रफ वर्क करो, नो।
द कॉपी इज़ लुकिंग वेरी अनटाइडी, रफ वर्क, और ये रफ वर्क का कॉलम सिर्फ मैथ्स के पेपर में बनेगा और किसी भी पेपर में नहीं. सो आपको सॉल्व करते वक्त सम्स को जो भी रफ वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है, जो भी, यू विल डू इट हियर. ओके, ताकि आपके टीचर्स देख भी सकें कि कौन सा रफ वर्क आपने किया है और कैसे सम्स को सॉल्व किया है. ठीक, अब हम बढ़ते हैं इधर. आई हैव गिवन द एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल आई हैव गिवन कि स्मॉलर क्लासेस में सपोज इस तरह आता है, बड़ी क्लासेस में, बिगर क्लासेस में जैसे आता है आप उस तरह से करेंगे. सपोज पहला क्वेश्चन आपका है सॉल्व दीज सम्स. ठीक है, एडिशन आपको करना है. तो अब इधर तो आपने रफ कॉलम बना लिया है, तो यू विल गेट लेस स्पेस हियर, इसलिए बगल बगल में नहीं कर सकते. सो आप सम्स को ऐसे प्रॉपर उतारेंगे, एक के नीचे एक, और उसके बाद आप उसको ऐसे सॉल्व करेंगे. आई हैव गिवन जस्ट एग्जाम्पल. बिगर क्लासेस में जिस तरह के भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे, मतलब मैथ्स में जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे, यू कैन कॉपी इट. देन जितने भी सम्स होंगे उनको आपको ऐसे उतार के करना है. देन सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उसके बाद आए डॉजिंग टेबल्स. ठीक है, आता है ना कि टेबल्स 2 4 5 4. आई एम गिविंग जस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्मॉलर क्लासेस चिल्ड्रन. इन द बिगर क्लासेस यू कैन डू बाय योर ओन. ठीक है, तो फिर उसके बाद उसको एक के नीचे एक लिखना है. सम्स जो हैं, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे जो कुछ भी हो, वो एक के नीचे एक होंगे, सॉल्व पूरा उतार करके. और जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो एक के नीचे एक, ओनली यू हैव टू राइट द आंसर्स ओनली. ओके, दिस इज़ फॉर द मैथ्स एग्जाम. Like this, you all have to write it in your answer sheet, students. So children, at last once again I will repeat all the things. So this is the answer sheet which you will get from the school. ये डबल पेज का आंसर शीट है. सो बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको यही शीट मिलेगी, बट फॉर जीके एंड इंग्लिश डिक्टेशन, हिंदी डिक्टेशन, उन सब के लिए आपको सिंगल शीट मिलेगी. एंड टीचर्स विल मेक द बंडल लाइक दिस एंड दे विल गिव यू अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. आपको 16, 17, 18 को आके स्कूल में आंसर शीट का ये बंडल जो है वो कलेक्ट करना है. आपको ऑलरेडी मैसेज आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल गया है. एंड सबमिशन 1 अक्टूबर, 8 अक्टूबर एंड 13 अक्टूबर को होगा. ठीक है, सो आपको उस समय पे आके अपनी आंसर शीट्स को स्कूल में सबमिट करना है टीचर्स को करेक्शन के लिए. सो एट लास्ट आई विल से दैट इफ यू बिलीव इन योरसेल्व्स, यू डू नॉट हैव टू फियर एनी ऑफ द चैलेंजेस. सो आई विश यू ऑल सक्सेस फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू सो मच. डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स चिल्ड्रन. थैंक यू.